Hello students, in today's lecture we are going to study about the monopolistic competition. In previous lecture we were trying to understand the various topics like monopoly, perfect competition and market structure. Now let's start with the first point, that is monopolistic competition. What is mean by the monopolistic competition? Monopolistic competition क्या होता है? Monopolistic competition is a market situation in which both monopoly and competitive elements are present. Okay, monopolistic competition यानी क्या है? ऐसे एक मार्केट सिचुएशन है वहाँ पे मोनोपोली एंड कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स भी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. मीन्स the most distinguished features of monopolistic competition which makes it a blending of competition and monopoly is product differentiation. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है. हमने मोनोपोली में डिस्कस किया था, वहाँ पे देखा था कि मोनोपोली में क्या होता है, एक ही सेलर होता है और वहाँ पे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं रहता है. Product differentiation refers to the actively created differences in products with respect to brand, trademark, design, packing, color, size, measurement, weight, such that through the products are similar. They are not identical, or in other words, the products are different but closely related. Okay, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहता है उसमें. मोनोपोलिस्टिक मीन्स क्या है? मोनोपोलिस्टिक competition is a market situation in which there are many sellers of a particular products, but the product of each seller is in some way differentiated in the minds of consumers from the product of every other seller. Okay, means यहाँ पे monopolistic competition में क्या है? competition में product differentiation है, मोनोपोली है एज वेल एज वहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है. ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स क्या रहेगा? वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल सोप है, पर उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहेगा. मीन्स ट्रेडमार्क चेंज रहेगा, उसका ब्रांड चेंज रहेगा, देन डिज़ाइन, पैकिंग उसकी, देन कलर, साइज, मेजरमेंट, वेट, ये सब जो चीज़ें हैं इसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन रहेगा, पर प्रोडक्ट सेम रहेगा. ओके, तो इसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. Next point, features of monopolistic competition. The first feature of monopolistic competition is a large number of sellers and buyers. Monopolistic competition में क्या रहता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं, बायर्स भी लार्ज नंबर्स रहते हैं. ओके, तो हमने मोनोपोली में क्या डिफरेंस था? मोनोपोली में हमने देखा था वन सेलर रहता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहता है. ठीक है, इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द नंबर ऑफ सेलर इज large and each other act independently without any mutual dependence. Here the action of an individual firm regarding change in price has no effect on the market price. The firms under monopolistic competition are not price takers. Okay, हमने मोनोपोली में देखा था, मोनोपोली में क्या था? फर्म्स कैसे थे? प्राइस मेकर थे. ओके, यहाँ पे क्या दिया है? द फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आर नॉट प्राइस टेकर. यहाँ पे प्राइस टेकर नहीं रहते. ओके, द नेक्स्ट फीचर इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. मोस्ट ऑफ द फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक सेल products which are not homogeneous in nature but are close substitutes. Products are differentiated from each other in the following ways. क्या है? रियल डिफरेंशिएशन एंड आर्टिफिशियल डिफरेंशिएशन रहता है. ओके, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स क्या है? मोस्ट ऑफ द फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक सेल प्रोडक्ट्स विच आर नॉट होमोजीनियस इन नेचर बट आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स. मीन्स प्रोडक्ट कैसे है? होमोजीनियस नेचर में नहीं है, मीन्स वो सेम नहीं है पर क्लोज सब्सटीट्यूट है, इसलिए वहाँ पे क्या हुआ है? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन रहता है. ठीक है, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज: real differentiation and artificial differentiation. What is mean by the real differentiation? These types of product differentiation arises due to differences in the quality of inputs used in making these products, differences in location of firms and their sales services. Okay, और artificial differentiation में क्या difference है? Artificial differentiation is the it is made by the sellers in the minds of the buyers of those products through advertisements, attractive packing, etc.
रियल डिफ्रेंशिएशन मीन्स क्या होगा, वहाँ पे क्वालिटी इनपुट्स उस प्रोडक्ट्स में डिफ्रेंशिएशन होगा, लोकेशन है वहाँ पे, क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की, उसमें साइज़ क्वालिटी, देन हमने डिस्कस किया था वेट है, मेजरमेंट है, पैकिंग मेजरमेंट वगैरह है, उसमें क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। इट मीन्स वो कैसा होगा, रियल डिफ्रेंशिएशन रहेगा। और आर्टिफिशियल डिफ्रेंशिएशन क्या है, सिर्फ लोगों के दिमाग में क्या किया है, सेव किया है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। कैसे किया है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, अट्रैक्टिव पैकिंग। ओके, कोई सेलर क्या करता है, कोई फर्म है वो क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल सोप है, उसकी पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव बनाई है उन्होंने, और उसकी एड भी, एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छी की है। तो वहाँ पे क्या हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, वो सेलर आर्टिफिशियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन में ये दो टाइप से, रियल डिफ्रेंशिएशन एंड आर्टिफिशियल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। Product differentiation in economics and marketing. Product differentiation is the process of distinguishing a product or services from others to make it more attractive to a particular target market. This involves differentiating it from competitors' products as well as a firm's own products. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी क्या है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन है, क्वालिटी है, कलर, देन शेप है, मेजरमेंट है, उसमें क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट पॉइंट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन एंड सेलिंग कॉस्ट। व्हाट इज मीन बाय द नॉन प्राइस कंपटीशन? नॉन प्राइस कंपटीशन, in this case different firms may compete with each other by spending a huge sum of money on advertisements, keeping the product price unchanged. नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो कि जो फर्म का ओनर है, जो कि सेलर है, वो क्या कर रहा है, वहाँ पे प्राइस में चेंजेस नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, और ह्यूज सम ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, स्पेंडिंग अ ह्यूज सम ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट्स। मीन्स वहाँ पे प्राइस में तो चेंज नहीं हो रहा है, पर एडवर्टाइज में वो क्या कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है और उससे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। सेलिंग कॉस्ट मीन्स एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट्स एंड सेल्स प्रमोशन बाय अ फर्म टू प्रमोट द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं हम? सेलिंग कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट्स एंड सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट की करने के लिए और सेल्स प्रमोशन करने के लिए फर्म क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर्स कर रही है उसके ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन करने के लिए। तो जो भी कॉस्ट लगती है उसके लिए, जो भी एक्सपेंडिचर्स लगते हैं, उसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। दे आर मेड टू prefer a particular product in preference to other products. Some advertisements have become so popular that people use a brand name to describe the product. For example, brand name is used to describe all types of washing powder. कभी कभी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं ब्रांड नेम से, तो यहाँ पे भी इसीलिए क्या होता है, ब्रांड, ये प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन जो रहता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता है, उससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रहता है। सेलिंग कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस incurred on advertisement, publicity, salesmanship, etc. Selling costs are incurred by the firms to make aware of the product, to attract new customers, to create customer base and loyalty. सेलिंग कॉस्ट किसके लिए, एक्सपेंसेस क्यों किए जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए, देन पब्लिसिटी एंड सेल्समैनशिप पे वहाँ पे खर्चा किया जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। क्या फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का? नेक्स्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। वहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं रहते हैं, आप कभी भी वहाँ पे फ्री एंट्री कर सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड द फर्म्स डिसाइड
to leave the industry. Every firm under monopolistic competition earns only normal profits in the long run, and there arises no supernormal profits or loss. Next feature is the independent price policy. A firm under monopolistic competition can influence the price of the commodity to some extent, and hence they face an inverse price elasticity of demand, or be relatively elastic because of the existence of many substitutes. ओके, वहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी रहती है, हाईली इलास्टिक रहता है डिमांड का, और डाउनलोड स्लोपिंग रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोजली सब्स्टिट्यूट्स है, वहाँ पे मेनी सब्स्टिट्यूट्स है, इसलिए वहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो रहा है. ओके, तो इसके लिए वहाँ पे डिमांड कर्व कैसा रहेगा, हाईली इलास्टिक और डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा. डाउनवर्ड स्लोपिंग हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. डिमांड कर्व ऑफ a firm reflected by its AR curve under monopolistic competition is downward sloping. The demand curve is highly elastic. This is because differentiated products under monopolistic competition has more close substitute. Okay, वहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है प्रोडक्ट के, इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, और वहाँ पे डिमांड का इसलिए कैसा रहेगा, हाईली इलास्टिक रहेगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा. ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.